a very logical day to all of you. And this is the discussion of the first editorial of February 18th, that was A Fork in the Road. फोक इन द रोड का मतलब होता है रास्ता जो चलने का है. डेफिनेटली ये हो सकता है, या द पाथ दैट यू हैव टेकन, इवन दैट विल बी कॉल्ड द रोड, राइट. विथ दिस आई रिमेम्बर वन पोएम, द रोड लेस ट्रैवल्ड. कभी मौका मिले तो ये पोएम जरूर पढ़ना. सो फोक का मीनिंग ये हो जाएगा इसमें, वे देर इज अ डाइवर्जेंस, बाइफर्केशन. ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास, दो तरफ से आप जा सकते हो, या दो ऑप्शन है आपके पास, वे यू कैन टेक something going into two directions would be called a fork, right? Now let's understand the reading part here. So in the face of US President Donald Trump's diplomatic blitzkrieg on Ukraine, Europe and Ukraine itself confront the risk of marginalization. After a 90-minute phone call with Russian President Vladimir Putin last week, Trump announced that negotiations to end the Russia-Ukraine war would begin immediately. Right, this is going to begin immediately. इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने पहले रशियन प्रेसिडेंट से बात की और फिर कहा कि ठीक है, हम इस पे बात जरूर करेंगे. डिप्लोमैटिक ब्लिट्सक्रीग. ब्लिट्सक्रीग होता है कुछ बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ काम करना इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. सो द टाइम ड्यूरेशन इज शॉर्ट and the frequency is high. That is called a blitzkrieg. Usually used in defense. It can be used for interview questions, or it can be used for something that what Trump is doing now. The moment he came as the helm of affairs, he started taking decisions. So diplomatic decisions उन्होंने बहुत लिए कम समय में और बहुत ज्यादा. ये मीनिंग हो जाता है blitzkrieg का. Officials from Washington and Moscow will reportedly hold talks in Saudi Arabia in the coming days to negotiate a potential peace agreement. तो वॉशिंगटन एंड मॉस्को एक कॉमन स्पेस हो जाती है इनके लिए सऊदी अरेबिया. ठीक है. Now Kiev, however, has not been invited and does not plan to attend, while French President Emmanuel Macron is convening an emergency meeting of European leaders on the issue. अब ये क्या हो रहा है? रशिया और वॉशिंगटन एक साथ मिलके यूक्रेन पर, कीव पर कुछ डिस्कशंस करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, मतलब मामला सही करने की कोशिश करेंगे. प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? पेरिस में. तो पेरिस कमिंग अप विद एन इमरजेंसी मीटिंग ऑफ यूरोपियन लीडर्स ऑन द इश्यू. Trump's bold moves mark a sharp departure from the approach of his predecessor, Joe Biden, who had not spoken to Putin since the Russian invasion and had labeled him a murderous dictator. A murderous dictator. His outrage effectively ends nearly 3 years of the West's isolation of Russia. So, 3 years of the West isolation of Russia. इसका मतलब, I'll take this sentence again. 3 years of the West isolation of Russia मतलब रशिया यूक्रेन का वॉर होते होते 3 साल हो गए और इसने वेस्ट ने कुछ ज्यादा रशिया को कहा नहीं है. एज सच यूक्रेन और रशिया के बीच में आए नहीं है. वो उधर साइड में दे आर हेल्पिंग, दैट्स अनदर मैटर, बट देन दे हैव लेफ्ट रशिया. By all accounts, the Trump administration appears intent on getting along with the Kremlin, and the resulting diplomatic dissonance between the US and Europe over Ukraine suggests that the West will remain a house divided in the near future. कुछ रशिया के साथ होंगे, या कुछ यूक्रेन को नाटो में लेना चाहते होंगे, कुछ यूक्रेन की हेल्प करना चाहते होंगे, कुछ यूक्रेन की हेल्प ना करेंगे तो न्यूट्रल रहते होंगे, राइट. Still it will be a divided thing. So now the administration, it appears intent on getting along with it. So Russia currently occupies about a fifth of Ukraine and insists that Kyiv cede this land, which would eventually be rendered permanently neutral. ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा. 1/5 ऑफ यूक्रेन है और ठीक है, इसे छोड़ दो. इसके ऊपर लड़ाई नहीं, वॉर ना हो, इतना और जाने ना जाए. US Defense Secretary Pete appeared to echo this stance last week at the NATO headquarters
in Brussels and dismissed a return to Ukraine's pre-2014 borders as unrealistic. ठीक है, जिसने भी कहा ये कि ठीक है यूक्रेन की जो बॉर्डर्स थी 2014 से पहले वही पूरा यूक्रेन के पास आ जाए, तो ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि ना दिस इज अनरियलिस्टिक। अभी जितना भी ऑक्यूपाई कर लिया है रशिया ने, 1/5 ऑक्यूपाइड है अगर, तो फिर लेट इट बी देयर न्यूट्रल। अ पोजीशन अनडाउटेडली वेलकम्ड बाय मॉस्को, क्योंकि उन्होंने कहा कि रिटर्न टू द 2014 नहीं हो पाएगा तो मॉस्को को तो बढ़िया अच्छा लगेगा। दैट इज इट। सो ट्रम्प हैज इवन गॉन ऑन टू से दैट यूक्रेन में बी रशियन वन डे। इतना भी बोल दिया कि यूक्रेन कहा एक बार रशिया के हाथ में वापस से आ जाएगा किसी न किसी दिन। अलार्म्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट्स यूनिलैटरल मूव्स, यूनिलैटरल मतलब वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना कि रशिया और यूक्रेन की सुलह करवा दे। यूरोप इज अनलाइकली टू गिव इन इजिली, द इमरजेंसी समिट होस्टेड बाय पेरिस इज एन इंडिकेशन, मतलब आसानी से वो बात ईयू को हजम नहीं होने वाली है, तो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, ये उसका एक इंडिकेशन है that yes, whatever Trump says, the EU is not going to listen to it like in a subservient manner. No. If you remember last time also yesterday also I think so, we read this article that EU was there, or somewhere I read that EU was considered as a junior, वहां पे थे। So, British Prime Minister Keir Starmer has reassured Ukrainian President Volodymyr Zelensky that his country remains on an irreversible path. Irreversible path का मतलब हो गया हम पलट के वापस नहीं जा सकते हैं, आगे ही बढ़ना पड़ेगा बस। To NATO membership, and that he will consider deploying the British peacekeeping troops to support Kiev. ठीक है, डिप्लॉइंग मतलब यूज करना, ब्रिटिश पीस कीपिंग ट्रूप्स को वो यूज करेंगे और कीव को सपोर्ट करेंगे। सो ट्रम्प्स प्लान कीव को सपोर्ट, मतलब कीव को अपने पास बनाए रखने में, दे आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ द पीस कीपिंग ट्रूप्स ऑफ the British peacekeeping troops. Trump's plan stands in sharp contrast to Europe's commitment to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. This is opposite. If Trump's deal moves forward, Europe's best course of action may be to bolster its military alliance to effectively deter future Russian expansionism. Best course of action क्या होगा? To bolster its military alliance to effectively deter यानी keep away, थोड़ा सा stall कर देना, फ्यूचर रशियन एक्सपेंशनिज्म जैसे ना हो, इसके लिए अगर यूक्रेन ब्रिटिश पीस कीपिंग ट्रूप्स की मदद करते हैं, बढ़िया है। यूएस का इरादा है रशिया को हेल्प कर देना, इस मामले में पूरा मामला सेटल कर देना, राइट। सो व्हाट बेस्ट कैन यूरोप डू is to bolster, means strengthen its military alliance with Ukraine, so that it can keep Russia away from becoming very strong in that area or expanding and taking their territory. इस हिसाब से हम रशिया को रोक सकते हैं, ठीक है। Now, during his recent visit to the US, Prime Minister Narendra Modi said that India is not neutral. लोग बोलते हैं इंडिया न्यूट्रल है, पर वो इंडिया न्यूट्रल नहीं है। तो इंडिया किसके साथ है? जहां पे भी शांति होगी, और अगर यूएस शांति बनाना चाहते हैं मॉस्को और यूक्रेन के साथ, तो फिर इंडिया भी यूएस और मॉस्को के साथ रहेगी। Modi's diplomatic engagements last week reflected India's commitment to its ties with the US and France. फ्रांस भी गए, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है ना, फ्रांस का भी था, यूएस का भी था। तो कमिटमेंट है ही सही इंडिया की किसके साथ? Latter being the EU's second most powerful country after Germany. So at the same time, Delhi considers Moscow a reliable partner. So we have Moscow, we have US, and we have France, and would welcome any development that arrests the deepening of China and Russia's no limits alliances. ठीक है, अरेस्ट का मतलब होता है स्टॉप कर लेना, रोक देना। तो वो कुछ भी करेंगे, खुश इस बात में रहेंगे कि रशिया और चाइना की जो नो लिमिट्स वाली अलायंस चल रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो या कम हो जाए, एटलीस्ट उसे हम रोक के रखें, दैट इज द पॉइंट। Now, peace in Europe would also bring economic stability, energy security, and increased trade opportunities. तो यहाँ पर what is going to be the benefit
on both sides of the divide. Western powers would have the time and the resources to shift their focus to countering China's growing influence in the Indo-Pacific, a key strategic priority for India. ये बहुत जरूरी है चाइना को काउंटर करना इंडो पैसिफिक एरिया में. If it ends up giving peace a chance, a potential Trump-Putin agreement would bring gains for India too. ठीक है, अब देखो ये पूरे बेनिफिट्स बता रहे हैं लास्ट वाला पैराग्राफ. अगर यूएस और रशिया साथ मिल गए, उनकी बात हो गई, सुलह हो गई, तो बेस्ट क्या होगा? वो पूरे वर्ल्ड के दूसरे एरिया में भी जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पे भी शांति बनाए रखने की कोशिश जरूर करेंगे. सो द टाइज बिटवीन चाइना एंड रशिया विल नॉट बी सो मच स्ट्रेंथन, थोड़े से सही हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और डेफिनेटली इन सब के बीच में इंडिया इज गोइंग टू बेनिफिट टू. So we have read that. Now let's come to the main idea. So he announced the talks. ठीक है, जब इन्होंने कहा, और यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं बोल्ड मूव्स. और यहाँ पे एक वर्ड है आउटरीच. नाउ सी all these three things, the talks have been announced, bold moves have been taken, and the outreach of Trump, this keeps him apart from the earlier president, that is Joe Biden. Okay. The complete paragraph was giving us what Trump has started doing, which is dissimilar to what Joe Biden was doing regarding this Russia matter. Now, getting along with Kremlin and the resulting diplomatic dissonance between US and Europe. अब हम ये भी मार्क कर सकते हैं कि अगर एक तरफ वो आगे बढ़ा रहे हैं बात, तो दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं तो डिसोनेंस हो रहा है, तो उनका ईयू के साथ झगड़ा हो रहा है. तो अगर यूएस झगड़ा हो नहीं रहा है ना, यूएस अगर रशिया की बात कर रही है तो ईयू को बुरा लग रहा है. अब ऐसा सोचो, ठीक है. Then, alarmed by the US president's unilateral moves, Europe is unlikely to give in easily. So this was the same thing, that EU is here on one side and Russia is there on the other side. US right now is talking about getting along with Kremlin, that is Russia. Country remains on an irreversible path. This is said by Ukraine. ये यूक्रेन का कहना है that they are going to deploy the British peacekeeping troops. So what is required here is a military alliance, right? So if EU wants to help Ukraine, तो वहां पे यूक्रेन का काम क्या है? वो मिलिट्री अलायंस के साथ स्ट्रांग हो जाए खुद और रशिया को रोके. तो नाउ दीज आर टू साइड्स. ईयू हेल्प करेगी रशिया को, या ब्रिटिश पीस कीपिंग ट्रूप्स हेल्प करेंगे यूक्रेन को, और यूएस रहेगी रशिया के साथ, राइट? तो देखो ये अलग अलग ग्रुप्स में हो गए. Now, coming back to our country, so India's commitment with the US and the France, ये हो जाता है मेजर. ठीक है, तो पूरा सिनेरियो समझा रहे. Delhi considers Moscow a reliable partner. So now the author is actually coming up with an analysis of that scenario to show how India is going to benefit if US and Moscow, they come together and settle the Ukraine matter. And these are all the benefits, as I said in the previous section also, ये सारे उनको benefits हो जाते हैं. इंडिया के लिए की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है ये सब, ठीक है. So Trump's plan for Russia-Ukraine war, Europe's uncertain future. Washington appears intent on getting along with Moscow, but the West will remain a house divided. हमारे पास दो चीज थी, West will stay divided and Washington and Moscow एक साथ आना चाहते थे. एक ये सेंटेंस हो सकता है. Trump's moves on Ukraine mark a sharp break from past US approach. A sharp break का मतलब होगा it is dissimilar. What Joe Biden was doing and what Donald Trump is doing, right? These two are dissimilar. It undermines the deepening divisions with Europe.
डिविजन्स विथ यूरोप का मतलब होता है यूएस जब काम कर रही है रशिया के साथ मिलके, तो ईयू को बुरा लग रहा है या ऑफेंड हो रहा है, तो वहां पे डिविजन्स हो गए। मतलब आप इस सिंपल तरीके से भी समझ सकते हो, यू नो हाउ ईच इज प्लेस्ड विद द अदर। Come on, let's come to these words now. Convene, you usually convene a meeting or summit talks या कुछ ऐसे होते हैं ना। So he is convening, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे वीन वर्ड आ जाता है, ठीक है। अब कन्वीन कन्वेंशन होता है, इन्वेस्टर्स कन्वेंशन कन्वेंशन होता है, इन्वेस्टर्स मीट होता है। तो कम टुगेदर, तो कन्वेंशन वुड बी लाइक एन असेंबली और अ मीटिंग। अ मर्डरस डिक्टेटर, ये तो बढ़िया बात है, ये तो उनको नाम दिया गया था इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो डिक्टेटर में हमारे पास एक रूट वर्ड है डिक्ट, दैट इज टू स्पीक और वर्ड, राइट। आप कैसे भी यूज कर सकेंगे, मेनली वो वर्ड के जैसा यूज होता है, जैसे डिक्शनरी, डिक्टेशन, डिक्टेट, यू कैन गेट मेनी वर्ड्स हियर, ठीक है। देन इंटेंड ऑन गेटिंग अलोंग विद, कमिंग टू द फ्रेजल वर्ब्स, टू गेट अलोंग विद एक हो गया, और इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग होता है, दैट इज द फ्रेज एक्चुअली, यू आर इंटेंट ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है। सीड इज टू गिवन, टू एको दिस स्टैंस, ठीक है, मीन्स टू सेकंड, टू बी ऑफ एग्रीमेंट with, agree to या to second it। अब ये वापस से फ्रेजल वर्ब आ गया है, अलार्म्ड बाय एंड टू गिवन इजीली। गिवन का मतलब हमने कल शायद किया था सबसर्विएंट और सरेंडर। टू सरेंडर इजीली। irreversible is something that cannot be reversed, it cannot be taken back, it cannot be revoked। ऐसे पाथ पे जाना जहां पे हम पलट के आना नामुमकिन है, तो irreversible पाथ हो गया। Another phrasal verb is in sharp contrast to। फिर to bolster means to strengthen, strengthen, strengthen। Deter means to stop, to thwart, थोड़ा रोक लगा देना, to detain, ठीक है। रशियन एक्सपेंशनिज्म, अब एक वर्ड ये लिख लो, रशियन एक्सपेंशनिज्म, चाइनाज एक्सपेंशनिज्म। तो आपको ये एक्सपेंशनिज्म किस तरीके से ये कंट्रीज कर रही हैं उसके ऊपर आप आराम से पढ़ सकते हो। हाउ रशिया इज एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरी, हाउ चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द अदर कंट्रीज, राइट। सो रीड रशियन एक्सपेंशनिज्म एंड रीड चाइनाज एक्सपेंशनिज्म। यहाँ पे टू डिटर है, तो टू डिटर इज अ फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। Next again, siding with somebody or something. Arrest the deepening of. To arrest means to stop, to detain. जैसे deter word हुआ था ना, वैसे arrest भी हो गया, stop। And deepening of China's and Russia's no limits alliance means deepening is strengthening, और bond बढ़ता जाएगा, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विल बी क्रिएटेड इन रशिया और चाइना के बीच में, और अगर यूएस ने रशिया को हेल्प किया तो फिर ये बॉन्ड इतना फास्ट, इतना क्विक, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। फोकस टू काउंटरिंग चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, शिफ्ट द फोकस टू, देखो ध्यान से पढ़ना, शिफ्ट समथिंग टू समथिंग। अब इसमें अगर फोकस आ गया तो यू शिफ्ट द फोकस टू समथिंग और टू डूइंग समथिंग, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्मेट आ जाएगा। सो योर फ्रेज बिकम्स शिफ्ट फोकस टू डूइंग समथिंग, राइट। अ फोकस ऑन डूइंग समथिंग ये भी होता है। तो अ चेंज इन द प्रेपोजिशन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फ्रेजल वर्ब्स।
चलो, मोर टू रीड में हमारे पास 2-3 हैं जो कि इसी पेपर में से हैं, इंडियन एक्सप्रेस में से ही हैं आज के. एंड रीड दीज 3 आर्टिकल्स, दे विल बी वेरी गुड, दे विल बी अ गुड रीड. शैकलिंग द कार्टूनिस्ट, शैकल मतलब उसको बेड़ियां बांध लेना, ठीक है, बांध लेना या फेटर्स होते हैं. तो फेटर्स का मतलब होता है चेन्स, बेड़ियां. तो अगर आपने कार्टूनिस्ट को शैकल कर दिया, बेड़ियों में बांध लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है. सोशल जस्टिस है, नॉट जस्ट कोटा. तो आप सिर्फ मार्जिनलाइज लोगों को कोटा दे दो, ये नहीं होगा, सोशल जस्टिस भी देना पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा सोसाइटी से रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों से सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है आपने. ठीक है, ये हो जाएगा एक. एंड लेट्स नॉट ईट केक. अगर हम केक की बात करते हैं तो एक मैरी एंटोनियट थी, फ्रांस की जब बात चल रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. आई थिंक सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रेड इट इन द 7th और 8th क्लास, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी होगी तो जब हम केक, ईट केक, इफ देयर इज नो ब्रेड देन ईट केक, ऐसा वाला कुछ था, उसका एक डायलॉग था, वेरी फेमस डायलॉग. तो उसके ऊपर का मैटर आप पढ़ लेना, उससे रिलेट करके ही ये आर्टिकल लिखा हुआ है. ठीक है, सो इट विल अगेन बी अ लिटिल related to history but how in the present context. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा. ये हिस्ट्री दी, एक टच है हिस्ट्री का, यहाँ पे एक टच है सोशियोलॉजी का, और यहाँ पे एक कंटेम्प्रेरी है. लेट्स सी, दिस इज रिलेटेड टू आर्ट. So again, you have 3 different journals. You can read it very well today. So thank you, and stay logical and stay positive always. See you soon.